I regularly sit with my students every week. Every Sunday, I've already decided, and we have been doing it for the last 4 5 months. We spend about 2 3 hours together. I try to listen to them, understand their problems, and try and solve them over time. There is one unique problem that I found out recently. Although I had an idea about it because I was also facing it as a student when I was a student, but this is something that I realized very recently that it's affecting a lot of students, and therefore I thought, let's talk about it. First of all, let's structure it in my mind and then talk about it. The problem is, how do you read a book for the first time? And today I want to talk about my way of reading a book for the first time. Now, it might be imperfect, it will certainly be imperfect to a very large extent, but it's also a lot of problems that students nowadays, especially students preparing for competitive exams like RBI, have been facing. The problem that they face is that they read tons of books but they remember very little. आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, किताब तो पढ़ ली बट पढ़ने के बाद ये नहीं समझ आया कि इसमें मैंने सीखा क्या, या फिर जो सीख भी लिया जब आंसर लिखने के लिए बैठे तो रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ या लिख नहीं पा रही हूँ. This is a major problem. This is a big problem because you're spending your precious time on doing something, and then when you actually try to test whether it is working or not, you realize that it is not working. It's like buying, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी एस्केलेशन चल रहा था, तो आई कैन गिव दैट एग्जांपल. इट्स लाइक बाइंग an air defense system from, let's say, Russia or America, or making your own. And when the time comes to actually use it, you realize that it's not applying, it's not getting used, it's not actually defending you from the enemy's missiles and rockets and all those things. So reading problem is like that. हम लोग किताब तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं, यहाँ पीछे भी बहुत सारी किताब रखी हुई हैं. अब आप ऐसी और 10 गुना किताब पढ़ लो पूरी ज़िंदगी में या अगले 1 साल में, but if you're not able to apply all of that, if you're not able to use that in your exam, in your goal, in your objective that you have in mind, तो फिर वो सब पढ़ने का फ़ायदा नहीं रहता है. So today I want myself to explain to you, मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से किसी भी किताब को अप्रोच करता हूँ. Whether it's a book which is directly a course book which is going to help you in the exam, or whether it's a non-fiction novel kind of a book. It's like a non-fiction book written by an author with a certain agenda which might not be directly relevant for your examination, but you nonetheless want to read it because you can't keep reading course books the entire day. You want to read something else as well for your leisure, for your peacefulness and all those things. So मैं दोनों किताबें उठाऊंगा, and both these books that I'm going to pick up have not been read by me. एक बुक मैंने स्टार्ट करी थी बट आई कुड नॉट कंप्लीट इट. आई लॉस्ट द फ्लो इन बिटवीन, एंड द अदर बुक आई हैव नॉट येट पिक्ड अप. मैं लेके आया था ट्रेड फेयर से, बुक फेयर से, बट आई हैव नॉट येट पिक्ड इट अप. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ दीज बुक्स वन बाय वन. मैं दिखा देता हूँ. सो द फर्स्ट बुक इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी बाय आर सुरेश. इट्स अ सेज फाउंडेशन बुक. तो सेज पब्लिशिंग काफ़ी अच्छी किताबें निकालती है. सो आई थॉट आई विल बाय दिस बिकॉज नॉर्मली ऐसी किताबें मिलती नहीं हैं मार्केट में. एंड द सेकंड वन इज़ वेरी पॉपुलर, ब्रेकिंग द मोल्ड, which was recently written by Dr. Raghuram Rajan and Rohit Lamba. So I started this book, but I could not finish it. I got bored probably in between, a lot of repetitions of what I already knew, so I probably kept it aside. I don't even remember. And this one I've not even started. So I will be talking about both these books because they're completely fresh to me as well, and how would I approach these books. Okay. Now, before actually picking up these two books, I want us to understand one thing. Before picking up any book, what I do is try and understand and tell myself what are the objectives of reading this book. For example, if I'm picking up this book, what is the objective or what are the objectives of me reading this book? मेरे क्या objectives हैं इस किताब को पढ़ने के? आपके, when you are in the middle of your examination preparation, when you're an aspirant or an achiever, then picking up any book has very specific objectives. What are these or what can be these? Number one, learning the concepts. तो इस बुक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी समझेंगे कैसे मैं डिकोड करूँगा उसको बड़े छोटे से थोड़े से टाइम पीरियड में. बट
दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको एक डेप्थ देती है जो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो वर्बली और इन राइटिंग. ओके, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. दैट इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल. Number two, second objective will be to be able to answer MCQs or to be able to write answers to questions which might pop up from this book. इस बुक से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, कोर्स बुक से आएगा. तो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, वेदर इट्स एन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेदर इट्स अ descriptive type question, उनको आंसर करना, that is going to be one of your major objectives. That is why you're reading these books right now. That is your goal. And the third objective is to create a structure in your mind, to be able to create a structure in your mind so that you can summarize the book in your mind in very short span of time. That is one of the major objectives. Otherwise, अब जैसे हम सामने सामने बैठे हैं, मैंने तुमको बताया कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पढ़ने की सोच रहा हूँ ये किताब. आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कैन यू समराइज दिस बुक, या मैंने पढ़ ली है ये बुक. योर फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सर कैन यू समराइज दिस बुक, कि ये बुक एग्जैक्टली बात क्या करती है. आई शुड बी एबल टू डू दैट, राइट. अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने किताब पढ़ तो ली है बट मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई उस किताब से. दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. So the third major objective of reading any book, that should be one of your objectives of reading a book in the future, and this is what I do before I start with any book or when I'm going through a book, is to create a structure in my mind so that I can create a summarized form of the entire book in my mind or on paper. एक पेज, दो पेज, तीन पेज में, या एक लाइन में, या फिर आधे पेज में, जो भी है, depends on the book. I should be able to create a summary of that book in a very structured format. That is one of the major objectives. Otherwise, book को आप use नहीं कर पाओगे exam में ultimately. So these are the three major objectives that you can keep in mind. I'll repeat them again: learning concepts or understanding concepts, having conceptual clarity. Number two, to be able to answer questions, whether MCQs or answer writing questions. And number three, to be able to create a summary of the entire book in your mind. एक structure, एक flow chart आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये book फलाना फलाना बातें करती है. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस बुक से. ओके, तो हमने समझ लिया कि दीज आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स. अब मैं बात करना चाहूँगा स्टेप्स के बारे में. व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेप्स, आफ्टर और simultaneously when I'm talking about these steps, I would also start picking up these books and start giving you examples as to how will I actually in reality follow these steps or execute these steps. Okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा और ये 4 स्टेप्स फॉलो करके आप बहुत अच्छे से किसी भी बुक की अंडरस्टैंडिंग अपने लिए बढ़ा सकते हो. दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो लर्नड probably a year back. I was reading something about how Barack Obama talks, how he understands, how he decodes whatever he's thinking, whatever he's reading, whatever he's talking about. And I realized that he does it with such clarity because he follows certain steps, and those steps were decoded to me in a certain write up. I went through it and I felt that it's very logical and very simple as well. ऐसा नहीं है कि वो बराक ओबामा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ यूज कर रहे होंगे टेक्निक्स. वेरी सिंपल टेक्निक्स, वेरी फंडामेंटल. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड आई फेल्ट कि यार ये काम करती हैं एक्चुअली. एंड दीज 4 स्टेप्स आर एक्चुअली टेकन आउट फ्रॉम दैट ओनली. तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, पूरा सुनिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो. सो स्टेप 1 is to understand the structure of the book. Now, what do we mean when we say structure of the book? This means कि बुक डिस्कस क्या कर रही है या फिर क्या करना चाहती है आपसे. जैसे मैंने बुक उठाई इकोनॉमी एंड सोसाइटी. इकोनॉमी सोसाइटी तो मतलब ये बुक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेगी, ये बुक सोसाइटी, सोशल इश्यूज, शायद उनके बारे में बात करेगी. तो मैंने जो हेडिंग है बुक की, जो उसका मेन टाइटल है, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की शुरू करी. अब मैं ये अंडरस्टैंडिंग और डीप में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा धीरे 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 धीरे. वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो when we are saying understand structure of the book, this includes number 1, what does the book discuss. book discuss exactly क्या करने की कोशिश कर रही है. चैप्टर्स के नेम्स क्या हैं, इस पे अभी मैं आऊँगा 2 मिनट में. मैं बता देता हूँ पहले इन चैप्टर्स में डिस्कस क्या किया गया है ब्रॉडली, इफ आई कैन अंडरस्टैंड देम, वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा. एंड लास्टली, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स
फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर रीडिंग दीज बुक्स so that you can clear your exams. You're not reading these books for just the sake of reading them, right? आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है दिमाग में, तो इसीलिए कनेक्ट करना ज़रूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ मच ऑफ इट इज़ रेलिवेंट एंड हाउ इज़ इट रेलिवेंट इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो सबसे पहले मैंने समझा कि बुक डिस्कस क्या कर रही है, फिर मैंने समझने की कोशिश करी कि चैप्टर्स के नेम्स क्या हैं, उन चैप्टर्स में क्या ब्रॉडली डिस्कस होने वाला है, और इन सारे चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ये स्टेप 1 है. तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम दो ही चीज़ कर रहे हैं. हमने पहले टाइटल देखा और टाइटल से कुछ समझने की कोशिश करी कि हाँ यार, ये बुक इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बात करेगी, शायद मैक्रो माइक्रो या कुछ और, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी और सोसाइटी, मतलब शायद सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करेगी. अब मुझे वो कंफर्म करना है बिकॉज आई हैव नॉट येट सीन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव नॉट येट रेड दिस बुक. तो मैं भी उतना ही ब्लैंक हूँ जितने ब्लैंक आप हो. अब समझना है कि कैसे मैं डिकोड करता हूँ इस बुक को. ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर हैं. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की जो हेडिंग है, जो सेक्शन है, नाउ एवरी चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. सो सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स. सेक्शन 1 जो है वो बोलता है इंट्रोडक्शन टू कैपिटलिज्म, फीचर्स एंड रेजीम एंड इवॉल्विंग स्ट्रक्चर. तो मतलब कैपिटलिज्म के बेसिक्स बताने वाला है कि बेसिक फीचर्स क्या होते हैं कैपिटलिज्म के, इवॉल्व कैसे हुआ कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, ये मुझे समझ आ गया, इतना ही. अब शायद मुझे ये भी नहीं पता कैपिटलिज्म क्या है, बट मैं वो गूगल करके समझ लूँगा. ठीक है, कैपिटलिज्म ये है, तो इसमें पूरी हिस्ट्री शायद उसकी बात की जाएगी कैपिटलिज्म के बारे में. मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है वो देख सकते हो. जैसे कि कैपिटलिज्म की हिस्ट्री या इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आरबी एग्जाम के लिए, तो मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी स्टडीज़ इस पूरी बुक की इन्हीं 2 चैप्टर से स्टार्ट करूं. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो, उस पर भी मैं आऊँगा. तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई. सबसे पहले मैंने देखा बुक डिस्कस क्या कर रही है, तो मैंने अभी खाली सेक्शन 1 देखा है. चैप्टर्स के नेम्स मैंने देख लिए. इनमें ब्रॉडली डिस्कस्ड क्या है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स के नेम से मुझे क्लैरिटी मिल रही है. और क्या ये रेलेवेंट है मेरे एग्जाम के लिए या नहीं है, कम रेलेवेंसी है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है. आगे चलते हैं. सेक्शन 2 बोलता है फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म. फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म में 4 चैप्टर हैं टोटल. इसमें लिखा है फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, फीचर्स ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म, देन फीचर्स ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म में ग्लोबलाइजेशन 1 एंड देन ग्लोबलाइजेशन 2. अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता कि यार ये ग्लोबलाइजेशन 1 और 2 क्या है. We've only heard about globalization. Now the book is dividing globalization into 2 parts, which is probably something new. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है. एक्चुअली इस बुक में कुछ भी रेलेवेंट नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज इट्स नॉट अ कोर्स बुक, है ना. ऐसी बुक नहीं है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगी या फिर सिलेबस का बहुत मेजर पार्ट है. बट इवन देन, बिकॉज एलपीजी रिफॉर्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपने वो शायद पढ़ लिया है थोड़ा बहुत. और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में 1991 के बाद ही आया है एज अ पॉलिसी, तो थोड़ा रेलेवेंसी ज़्यादा है. हिस्ट्री से तो ज़्यादा है रेलेवेंसी, हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म से. तो मैंने यहाँ पे डाल दिया. और एक और टर्म यहाँ पे दिया है कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म वर्सेस मोनोपोली कैपिटलिज्म. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं समझना चाहूँगा. शायद एग्जाम में डायरेक्टली ना आए तो इनडायरेक्टली आई कैन यूज़ इट. तो रेलेवेंसी थोड़ी ज़्यादा है. फिर आता है सेक्शन 3 फंक्शनिंग अंडर कैपिटलिज्म. इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं. फंक्शनिंग अंडर कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, फंक्शनिंग अंडर मोनोपोली कैपिटलिज्म, फंक्शनिंग अंडर पोस्ट फोर्डिस्ट मोनोपोली कैपिटलिज्म. अब ये मुझे नहीं पता ये फोर्डिस्ट मोनोपोली कैपिटलिज्म क्या है, ये एक और डिवीजन है शायद, तो समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग टू मी. फंक्शनिंग अंडर पोस्ट फोर्डिस्ट मोनोपोली कैपिटलिज्म टू फाइनेंशियलाइजेशन. अब दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड सेक्शन. सेकेंड सेक्शन में हमने ग्लोबलाइजेशन 1 और ग्लोबलाइजेशन 2 की बात करी. सेक्शन 3 में हम उसी पे और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन 1 में किस तरह से कैपिटलिज्म फंक्शन करता है, ग्लोबलाइजेशन 2 में किस तरह से कैपिटलिज्म फंक्शन कर रहा है, इसकी बात करिए. सो इन डिटेल वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एज एन आइडिया, एज एन आइडियोलॉजी, एज अ पॉलिसी अंडर ग्लोबलाइजेशन 1 एंड ग्लोबलाइजेशन 2. हमने ऊपर सेक्शन 2 में तो खाली फीचर्स डिस्कस किए, यहाँ पे हम फंक्शनिंग पे आ गए. तो मेक सेंस नाउ, फीचर्स एंड फंक्शनिंग बोथ आर रेलेवेंट, तो सेक्शन 3 मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. फिर आते हैं सेक्शन 4 पे, जो लास्ट सेक्शन है.
क्राइसिस टेंडेंसीज अंडर कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म कब क्राइसिस में हो सकता है। इसमें बिजनेस साइकिल, सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, अब ये तीनों मेरे सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किस तरह, व्हेन कैन कैपिटलिज्म फेल, बेसिकली ये बात कर रहा है कि कैपिटलिज्म फेल कब हो सकता है। बिजनेस साइकिल्स के टाइम पे वो फेल होता है व्हेन देयर इज अ व्हेन देयर इज अ डिप्रेशनरी साइकिल। सोशल इश्यूज मतलब सोसाइटी में जो भी इश्यूज होते हैं उसमें कैपिटलिज्म फेल हो सकता है, और अगर एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं तो वहां पर भी कैपिटलिज्म फेल हो सकता है। ये मैंने ब्रीफ जो टेबल ऑफ कंटेंट है उससे समझ लिया। अब ये ब्रीफ टेबल ऑफ कंटेंट के आगे कुछ बुक्स में आपको डिटेल वाला कंटेंट टेबल मिलेगा जिसमें हर चैप्टर के बारे में डिटेल में बात की गई है, और अगर वो नहीं है, इवन इफ दैट इज नॉट देयर, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, आप हर एक चैप्टर खोलोगे तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन या कुछ ना कुछ बेसिक उस चैप्टर के बारे में मिलेगा ही मिलेगा। दैट विल अगेन डीपर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर, कि चैप्टर में एग्जैक्टली क्या डिस्कस होने वाला है। वापस आते हैं, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था चैप्टर डिस्कस क्या करता है, हमने वो समझ लिया। नेम्स क्या है चैप्टर्स के, वो हमने देख लिए। हमने ये भी मार्क कर लिया कि भाई ये रेलेवेंट ज्यादा लग रहे हैं, ये रेलेवेंट कम लग रहा है। व्हाट इज डिस्कस्ड इन ऑल चैप्टर्स ब्रॉडली, ये भी हमने समझ लिया। टेबल ऑफ कंटेंट्स ही समझ लिया, ठीक है ना, अपने आप भी समझ सकते हो। नहीं समझ आ रहा है तो हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर समझ आ जाएगा कि हर चैप्टर में ब्रॉडली क्या डिस्कस्ड है। एंड लास्टली व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। अब ये लास्ट जो पॉइंट है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैं कैसे फिगर आउट करूं, ये हमें लेके आएगा स्टेप 2 पे। क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है, हाउ इज दिस चैप्टर और हाउ आर ऑल दीज चैप्टर्स कनेक्टेड विद द एग्जाम, कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे फिगर आउट करोगे कि ये वाला जो चैप्टर है ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू करोगे, पास्ट ईयर पेपर्स एक बार देखोगे, धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू समझ आ रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई होने लगेगा। दैट इज स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ये आपका स्टेप 2 है किसी भी बुक, स्पेशली कोर्स बुक को पढ़ने से पहले। ये पढ़ने से पहले करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना शुरू कर दिया, आधी बुक पढ़ ली फिर ये कर रहे हो, नहीं, पढ़ने से पहले स्टार्ट करना है और पढ़ते पढ़ते इसको बार बार करना है। पास्ट ईयर पेपर्स को रेगुलरली उठाओ, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता लगता है कि कोई भी किताब उठा रहे हो, व्हाटएवर बुक यू आर पिकिंग अप, इसमें से कौन से चैप्टर्स मेरे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, कौन से चैप्टर्स, विच चैप्टर्स आर द लीस्ट रेलिवेंट, एंड आई विल स्टडी अकॉर्डिंगली। अब जैसे ये बुक मैंने उठाई, आई विल नॉट स्टडी द इंट्रोडक्शन बिकॉज आई number one, I don't care a lot about the history of capitalism, I probably know a lot about it already, so it will be repetition. Secondly, I don't think it is relevant from the examination perspective. More relevance is globalization 1 versus globalization 2, what are the features and how do they function, and then what are the situations in which capitalism fails or goes into a crisis, business cycle, social issues, environmental issues. This is more relevant for me from examination point of view, so I would rather read them rather than getting stuck in the chapters which are less relevant for me, less relevant from my examination perspective. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पास्ट ईयर पेपर्स से आएगी। बिफोर स्टार्टिंग विद एनी बुक, कंप्लीट दीज 2 स्टेप्स, एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट विद द सेकंड स्टेप, सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टेप 3, रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस के हिसाब से मार्क कर लिए। रीस्ट्रक्चर द बुक अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट आई डू, मैं रीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा खाली फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2, फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1 and 2, एंड देन आई वुड वांट टू रीड अबाउट व्हेन डज कैपिटलिज्म गेट इनटू अ क्राइसिस और हाउ इन बिजनेस साइकिल्स, सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑल्दो मेरे को ये काफ़ी आइडिया है, बट इवन देन मैं थोड़ा बहुत स्किप करके देखना चाहूँगा कि इसमें कुछ नया है क्या नहीं है। बट सर्टनली आई नो कि ग्लोबलाइजेशन 1 और 2 मुझे बिल्कुल नहीं पता है, तो ये तो मैं उठाना चाहूँगा, बोथ फीचर्स एंड फंक्शन। तो मैंने देखो फिगर आउट कर लिया 5-10 मिनट के अंदर अंदर कि मेरे लिए इस बुक में क्या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है पूरी बुक ही डिकोड करो, आधी बुक डिकोड करके 1/4 बुक डिकोड करके भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बट द स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट। जो कम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या पास्ट ईयर पेपर्स से मैच करके लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनको मत उठाओ।
If you keep doing that, you're wasting your time, and you don't want to waste your time, especially when you're preparing for competitive exams. आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा efficiently पढूं. Okay, so don't be afraid of restructuring the book according to your own needs. This is what I do. I am not afraid of restructuring the book according to my own needs. जो मुझे लगता है मेरे लिए relevant है, मैं उसी को पढ़ता हूँ और सब मैं हटा देता हूँ. Okay, this brings us to step number 4. After every chapter, what does it say? It says after every chapter, try to summarize what you have read. This is what I do. मैं जैसे ही पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, किताब बंद करी और फिर बैठा आराम से इस तरह से और सोचा कि अच्छा इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा या क्या क्या मुझे याद है, क्या क्या मुझे समझ आया, what all could I remember. So I'm trying to summarize whatever I understood from this chapter, what new have I gained from this chapter. I might be able to recall only 10%, 20% of what I've read, but it's okay. इससे ज़्यादा आपका दिमाग एक्चुअली याद भी नहीं रख सकता है. आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दैट इज गुड इनफ. सो इन स्टेप 4, आफ्टर एवरी चैप्टर, try to summarize what you have read. This is what I do. I try to summarize whatever I have read. And this is something that I picked up from the reading of Barack Obama. This is what he does, not only when he is reading, but also when he is talking. कि तुमने मुझसे कुछ बोला, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो वो समराइज करेंगे अपने दिमाग में, समराइज करते हैं कि ये इंसान एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, और उस समराइजेशन के बेसिस पे फिर अपना आंसर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. दैट सिंपली ही इज बेसिकली सिंप्लीफाइंग whatever he has read, whatever he is listening to, and through after that simplification he is responding. That is what you also need to do. It makes your life much more easier. Believe me, try it. A little effort in the starting, but then you'll start feeling good about it. So summarize what I have read. This is what I do. Summarize what I have understood from it, and what kind of an analysis can I make from it. तो खाली ये नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, बट ये भी कि मैंने क्या समझा है इस किताब में से या इस चैप्टर में से, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पॉइंट था तो वो क्या था. ये सब मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एट द बैक ऑफ दैट चैप्टर ऑल्सो. ओके, this is the most important part, and this is something that I told you that is followed by great leaders also. It's a useful habit that takes time, but once you have got used to this habit or understood this new habit, you will feel that you're doing much better. You will feel that you're able to remember more out of these books. Now, मैंने जो explanation दिया, that was more oriented towards a course book. अब मैं सेम एक्सप्लेनेशन एक नॉन फिक्शन बुक के हिसाब से भी दे देता हूँ. तो ये हाँ, नॉन फिक्शन बुक के हिसाब से भी दे देता हूँ, नॉट अ फिक्शन बुक. सो ब्रेकिंग द मोल्ड, वेरी पॉपुलर बुक रिटन बाय डॉक्टर रघुराम राजन वेरी रिसेंटली. मैं इसके आपको चैप्टर्स दिखाता हूँ और देखते हैं कैसे डिकोड करते हैं. नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग इट डायरेक्टली इन द एग्जाम, बिकॉज कोर्स बुक नहीं है, बट फिर भी नॉन फिक्शन है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा. पार्ट 1 आते हैं. ये बुक भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स हैं. हर पार्ट में कुछ चैप्टर्स हैं. पार्ट 1, डेवलपमेंट एंड इंडियन वे. सो बेसिकली पार्ट 1 इज गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट. पार्ट 1 के चैप्टर्स क्या हैं? हाउ डू कंट्रीज ग्रो रिच, चैप्टर नंबर 1. व्हाई हैज इंडिया नॉट बिल्ट अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस. सो द पार्ट इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू. Chapter number 3, transformation in trade and services. So the chapter is the section is more concerned about agriculture, services, manufacturing. Probably agriculture की बात नहीं करेगा क्योंकि table of content में mention नहीं है. तो services, trade versus manufacturing, इस पे focus करेगा. So development from industry and services point of view, that is the focus of part 1. ये मुझे समझ आ गया, ठीक है. This is how I am decoding every part और एवरी चैप्टर ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. फिर मैं उस हिसाब से पढ़ना शुरू करूंगा. पार्ट 2 इज टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस कैपेबिलिटीज. अब गवर्नेंस का मतलब तो ये होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जस्टिस सिस्टम कैसा है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है, ये सब गवर्नेंस के अंदर आता है. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस फॉर द 21st सेंचुरी, प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस फॉर द 21st सेंचुरी. हो सकता है मैं ज़्यादा ना पढ़ूं क्योंकि गवर्नेंस मेरे सिलेबस में नहीं है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है अभी के लिए, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ. फिर आ गया केपेबिलिटीज़ पे. केपेबिलिटीज़ चाइल्डहुड चैलेंज, केपेबिलिटीज़ हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी.
अब ये सब मेरे सिलेबस से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और मुझे इंटरेस्ट भी है, और दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट how can India as a nation increase its capabilities in these areas. So it is talking about development from a society point of view, from a point of view which is beyond economic growth. I hope you understand the difference between growth and development. तो ये डेवलपमेंट को बियॉन्ड ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ, इनइक्वालिटी, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना। ये पार्ट 2 हो गया। फिर आए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 इज रैपिंग अप द रॉन्ग वे। सो बेसिकली पार्ट 3 इज लाइक अ कंक्लूजन। तो छोटा सा भी होगा, 10-20 पेज का, तो मैं पढ़ सकता हूँ, शायद मुझे कुछ नया मिल जाए। तो मुझे क्या रियलाइज हुआ, मुझे रियलाइज हो गया कि पार्ट 1 जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेशन पे ज़्यादा फोकस्ड है, कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में हम कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे खराब हैं, हम क्या कर सकते हैं आगे जाके। एंड पार्ट 2 इज मोर फोकस्ड अपॉन societal or welfareist point of view of development, which means education, healthcare, inequality, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड, इन सब में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ओके, सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई इस किताब के बारे में। हाउ हैव आई डन इट? सबसे पहले मैंने स्टेप 1 उठाया, मैंने बुक का स्ट्रक्चर देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस तरह से डिवाइडेड है, उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, बुक डिस्कस क्या कर रही है, चैप्टर्स के नेम्स क्या हैं, ब्रॉडली हर चैप्टर में क्या डिस्कस्ड है, वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत पड़ती तो भी मैं कर लेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने आइडेंटिफाई किए मेरे हिसाब से, जैसे गवर्नेंस नहीं था तो गवर्नेंस मैंने हटा ही दिया। ऐसे करके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सबसे पहले उठा लिए, अब मैं पढ़ूंगा तो उन्हीं को पढ़ूंगा। फिर स्टेप 2, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज नॉन फिक्शन बुक है, इट्स नॉट अ कोर्स बुक, तो स्टेप 2 हमारा यहाँ पे यूजफुलनेस उसकी जीरो हो जाती है। स्टेप 3, सबसे पहले read the most important chapters first according to you. Don't be afraid of restructuring the book according to your own needs. There's nothing wrong with that. And step 4, which I'm going to do as I read the book, after every chapter, I will try and summarize whatever I read in that chapter. I will try and tell myself कि हाँ जिंदल साहब, आप बताओ आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, what is your understanding of this chapter, what kind of analysis can you make from this chapter, etc., etc. Do those kind of things with the book. If you do that, you can summarize the chapter more efficiently for your understanding, and through that summarization you can probably learn a little more about every chapter than you would otherwise. Okay, so this is how I read every book, this is how I try and structure every book in my mind before actually going through it. It's a probably 20-25 minutes, maximum 20-25 minutes exercise, but it works wonders because your understanding of the book is much more detailed, and automatically when your understanding is better, you find it more interesting and you learn a lot more from every book, every chapter. Okay, that is all from my side for today. If you want me to talk about something else, some problems that you might be facing in your preparation, directly, indirectly, you can put it down in the comment section below. I will try and talk about them, try and decode them for your understanding as soon as possible. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.